Good afternoon, everyone. Myself, Saurabh Agarwal. I'm the director for HeartCare Foundation of India. Welcome to Chat with Dr. K.K. Agarwal, 2 p.m. show, every day live. We are on, this is a 2524, 2524 show, which we are on. And, this particular show is 417 series. I am the financial person. I take care of the financial part of the foundation. So today I wanted to be a part of this show. There's a lot of talking which is happening on the medical side of it. There's a medical problems. There's a medical medical negligence and all that stuff is happening. So today we are talking about the financial part. Finance is very important for a strong mental health. So we have a mental health, we have a physical health, and then we have a financial health. So आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो फाइनेंशियल हेल्थ पे करेंगे कवर. अगर आपका फाइनेंसेस स्ट्रांग है, इफ यू आर एबल टू, फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू बी रिच. यू हैव टू plan your investments, you have to plan your savings, you have to plan your earnings, you have to plan things around so that your over a period of time what you earned in your life can be secure for your future, can be made available for your emergencies. We also have, for this topic, I've also invited one of my very close friends, Nirmal Bansal. He's a CEO for iVenture Capital. And on a very short notice, I just invited him to answer some of your question answers. I know in this COVID era, finances are something which is not something you are looking for answers. But trust me, this is a very, very important topic. अगर आपकी लाइफ में पैसों का कोई स्ट्रेस नहीं है और आपने प्लान करा हुआ है हर चीज, ट्रस्ट मी, अगर आपकी इनकम 10,000 है तब भी आप प्लान कर सकते हो. सो इट इज नॉट हाउ मच यू अर्न, इट इज हाउ मच यू प्लान योर फाइनेंसेस, योर overall scenario, how much you do that. And if you are well planned, everything else can be taken care of by the medical experts. So the topic of the discussion today is financial health in this COVID era. So Nirmal, topic पे बोलना चाहोगे before we can start taking questions? Yes, that's my favorite topic, Saurav, and thanks for inviting me because I can speak a lot on this. And see, I have my own learnings as an entrepreneur, as a businessman, because I'm a businessman first and then a financial coach. So we are managing 500 crores of assets, financial assets of a lot of family members. So I want to tell you very important thing that it's not being taught in the school. We all in the school, we have learned how to make money, what to do business and how to do a job. But most of us forget why we are doing it. End of the day, we want financial freedom. It's a very broad topic, but end of the day, we need financial independence. That's why we are working for, except our passion towards work. End of the day, we always look for money, but we don't realize that while earning, everyone earns money, from a small boy to later any big businessman is focusing on money. But you will find a lot of reasons that all the wealthy individuals eventually after 10-15 years don't have money or go for bankruptcy. You might have seen a lot of examples because we don't understand the relationship with money. It's not about just making money all the time, but the most important thing is how we can save it 10-20%. And my favorite book is Rich Dad Poor Dad, where Robert T. Kiyosaki has very clearly mentioned how you can increase your financial net worth. That should be our focus there, because we need how fast we can cut a check and how financially independent we are. So I can talk as you ask questions. I totally agree with you, Nirmal, and I think you were reminding on some people, and yes, there are a few well-known names who have earned so much of things in their life, and eventually they have not. They have been crying out. They don't have earnings. They don't have earnings, and they don't have anything left over because of it was a poor planning. So there are a couple of statements which I appreciate. One is, never rely on single earning, never rely on single income. You should always create a second income. And it is never too late to start planning. So if somebody is at the age of 60 years old here, he cannot say, oh, I've not done anything in my life.
Now what to do? He can still start his second income. He can still start earning. Somebody who is at the age of 18 and 19, or somebody who is at the age of just earning his first income, he can start, putting up a proper planning portion. And when he retires at 60, what I learned in my life is how to retire his kings, how to retire king size. How do I Yes. make sure that whatever life, whatever lifestyle I am maintaining right now, after 60, I'm not dependent on my kids. Half of the problem happens when parents feel that they start depending on their kids, and Brilliant. there is a mismatch Brilliant. of the information comes in. But if you are secure yourself over a period of time, you can go back to your kids and say, I'm not dependent. In fact, you can still be dependent on me because I have a second income right now. So this is Brilliant. my thought process. And my second very good statement, which I follow every time, is do not save what is left after spending. Spend what is left after saving, or Wow. Wow. investing. So this is Yes. I follow So it's my a thing. Warren Buffett line. Yeah, obviously it makes sense, lot of sense. See, I think everyone needs a financial coach. Like you need, when you go to gym, everyone wants to get smarter, and then we find a coach. We find a nutrition coach. We find a education coach, business coach. There should be a financial coach, each one of you, so that he is aligned to your objective, the bigger goal. That end of the day, you have to detach yourself from your business and have financial independence, your own self, which is absolutely right, Saurav. And that will only come when you should know how much you are saving, then spending, and then compounding. Everyone's read in the school. I have read, but we don't understand compounding very well. Yeah, we don't So follow if things, in we real life, don't we don't follow follow. because we see it's bahut dur hai. It's not like that. So every small things becomes big, like a bamboo tree. 2 years, 3 years, 4 years, fifth year the bamboo tree doesn't grow, but fifth year it goes to 40 feet high. So that's एक the और एक numbers. और And चीज मैं इसमें ऐड करूंगा जो मेरे को प्रॉब्लली तुमने ही बताई है कि when you Mhm. grow a seed, it does not give you a fruit on the day one. You Yes, have yes, to yes, wait yes, for every cycle. You have to wait for, पतझड़ आता है, वो फूल yes, मरता भी yes. है, उसको दोबारा खड़ा करते हो, डंडी से खड़ा करते हो. तो एक Yes, yes. प्लांट को उगाने में कितने साल लगते हैं और पेड़ बनने में कितने साल लगते हैं. तो वो पेड़ अब जब 18 साल से आप शुरू करो और 60 साल में जाएगा, तो तब जाके वो पेड़ फल देना शुरू करेगा. और उससे पहले आप उसमें बीच में काटते रहोगे तो वो फल नहीं आएगा, वो सिर्फ बहुत बढ़िया. टहनियां आते रहेंगी, वो किसी बहुत उसके लिए बढ़िया. काम आता रहेगा. तो these are very important facts we are talking about. The reason I we am choose this myself doing topic. it. I myself practice it. Every month I buy whatever surplus I have to buy good quality companies in bonds and equities both. And I think you are also doing it. And that Yes. habit we should cut the noise and listening to the world all the time. So, we should focus and align to our objective. And that's very, very important. We should not So, change it. so this is a And it's, brief introduction about the topic. This is a brief hmm, introduction. Nirmal will keep it very simple this day. What we have done is, so Dr. KK Agarwal is not well. He is suffering yeah, from yeah, COVID. Till the yeah, time yeah. he's back, we have dedicated Saturdays for the financial health. We are trying to cope up with the people who are having a financial stress. I get a lot of calls from people and say कि sir मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मेडिकल में कैसे करूँ इलाज. तो where Heart Care Foundation of India is working on, where nobody should die because of somebody just because they cannot afford. At the same time, you should also become independent. So this today हम आधा घंटा आपका चुराया है. From medical side, we cannot answer the medical questions today, but this is a very important topic जो हमने cover करा है आज, और जो हम आगे लेंगे. We will ask question answers. So every Saturday, tune in for 2 p.m. show for financial health, which I will be conducted by me. Nirmal will be a part of that show on occasions, and then we will also invite few other speakers for asking your questions. Yes, But yes. it We'll is very invite. important. It Yes, is yes. very very important for you to understand how you can do. Again, मेरा सवाल यहाँ पे आपके लिए ये है कि फाइनेंसिस का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू ग्रो रिच. फाइनेंसिस का मतलब ये है कि यू हैव टू प्लान अ प्रॉपर portion of things which goes for emergency, for investment, for your savings. मतलब मेरे पास अगर 10,000 रुपए आते हैं, मैं उसमें से अगर 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूं तो मैं 9,000 रुपए बिना सोचे खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि वो 1,000 रुपए मेरे लिए इनकम बना रहा है 60 years के बाद. So there are a lot of assets जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे. We will take questions from a lot of people. We have Krishan Chawla ji with us, who is a COVID guide, and uh, we also have Dr. Mona Seth with us, who is also our COVID guide. And we are proud to say that these two people, along with other COVID guides, are there with us for so long, helping us out to
work on my COVID educator program, which we have started, and helping the people around. So these are also the members with us. We have chosen Krishnan Chawla ji today because he can talk about, what stress he is going through, or if he is not going through stress, has he done a planning or not? And we have Dr. Mona Seth as well, which can relate questions from the female side of it. We will also throw questions to the general public, and we will ask questions to them. So बताइए डॉक्टर कृष्ण चावला जी, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? If you have any questions right now for us. See, I just want to know that I am from the era when half of our life was, spent, I'll not say wasted, on parents. And the remaining half of our life or half of our earning we spent on children. So we are left with nothing. We are bankrupt. In such a situation, what do we do? तो कृष्ण चावला जी, पहला मैं ये बोलूंगा कि ये जो आपने सोचा है वही आपका बच्चा सोचेगा, वही आपके फादर ने सोचा होगा. So this is a cycle which continues. Nothing is wasted. It is a relationship you earn. It is the the portion which you have. So आज की तारीख में अगेन निर्मल, ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए था कि 60 इयर्स में कोई बंदा है वो कैसे सोचेगा कि क्या प्लानिंग है. तो आई थिंक इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बिफोर निर्मल कैन ज्वाइन इन फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, इससे पहले सबसे पहले आपको अपना आज की तारीख में हमारे को जब मैं सिटी बैंक में था, हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू डू रिस्क प्रोफाइलिंग. एनीथिंग स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज. क्या उसके आज की तारीख में क्या आपके सर पे कोई लोन है, कोई लाइबिलिटीज हैं, कोई आपके घर में कोई किसी की शादी है, कुछ करना है, या फिर अब आप बिल्कुल फ्री हैंड हो गए हो. यस, यू आर डिपेंडेंट. आपने पहले कुछ साल पेरेंट्स के ऊपर खर्च करा, उसके बाद आप बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो. A proper planning is what is required. You can still start investing. You can still start creating a second income for yourself. A portion of money which is required. Let the money grow itself. There are a lot of baskets which are available where you have to start. There are a lot of options which are available where you have to do. We are not talking about any specific category of funds today. We will talk about those later. But planning is very important even at this age. So I used to remember. I used to remember. मेरा एक client होता था, वो बोलता था कि मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, मैं उसके नाम पे एक जमीन खरीद लेता हूँ, उसके लिए पूरा खत्म हो गया. He doesn't have to do anything. That is also one way of investing. The other way of investing is आप 5 रुपए अर्न करते हो, उसमें से 1 रुपया आप साइड पे कर दो. दूसरी वे ऑफ इन्वेस्टिंग है कि आप 1 रुपया स्पेंड करते हो, बाकी सारा आप कर देते हो. So there are options which are available from 6% to extra, whatever return is. But we are not talking about the returns right now. We are talking about how to safeguard your emergencies. आपका सबसे बड़ा जो आपको वो होगा कि अगर मेरे को कल मेडिकल इमरजेंसी मिलेगी तो मैं वहां पे कहाँ पे खर्च करूंगा, वहां से कैसे फंड लेकर आऊंगा. तो इंश्योरेंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी टॉक अबाउट. एवरी पर्सन नीड्स टू बी इंश्योर्ड. नाउ इंश्योरेंस व्हेन आई टॉक अबाउट इज नॉट कि इन्वेस्टमेंट. इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट डजंट हैव टू बी मिक्स्ड. इन्वेस्टमेंट्स अलग होती है, इंश्योरेंस अलग होती है. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मिक्स कर देते हैं. इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर कल को आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे कौन इंश्योर करने को रहता है, वो होती है इंश्योरेंस कंपनी. So Nirmal, how do you want to answer this question on this? No, it's a very broad answer. You have mentioned it very, very right. क्योंकि क्या होता है, अगेन मैंने इसीलिए बोला फाइनेंशियल कोच चाहिए. ये वन लाइन आंसर नहीं है इसका. सर ने पूछा चावला जी ने कि मैं definitely spend good time on his age while earning and then spending. Every parents do that. In India, we don't have social security, unlike Western countries. So maybe earlier it was kids and today also it is kids, but the future is very, I think it's very insecure because kids goes away, they travel or they shift to other countries and parents are alone. You see a lot of situations around. So end of the day, every person, I think government doesn't say this, but we all must have sessions on these, that we must be self-dependent. जो आत्मनिर्भर बोलते हैं, आत्मनिर्भर business के लिए नहीं है, आत्मनिर्भर के लिए है. That we should be आत्मनिर्भर on ourselves, will not be dependent on anyone, and that will come by 2-3 ways. First, एक तो है कि हमारे expenses खत्म नहीं होते, तो we should delay our gratification. जो जरूरत है, we should delay our bills पहला, which I feel which is very, very important. तुम्हारी ना आवाज ब्रेक कर रही है. I don't know, आप एक बार चेक करोगे नेटवर्क आपका. I think आपकी आवाज ब्रेक कर रही है. Can you hear? कर रही है मेरी? हाँ, बीच में ब्रेक कर रही थी आवाज. हाँ, can you check your network? No, my network is fine. I'll do.
सो कृष्ण चावला जी, काफी सारी ऑप्शंस आती हैं। जैसे यूएस में मुझे पता है, कनाडा में मुझे पता है कि वहाँ पे रिवर्स मॉर्गेजिंग भी होती है, जहाँ पे आप अपना घर को एक बैंक को आप दे सकते हो। आप बोलो कि मैं जब तक जिंदा रहूं आप मुझे इतना पोर्शन ऑफ पैसे दो। एंड जिस दिन मेरे को इंडिया में भी आ गया आ गया, बट लोग ना सर करते नहीं है, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव प्रॉपर्टी और पेरेंट्स डोंट अलाउ। वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है हमारा प्रॉपर्टी से। वेस्टर्न थिंकर्स डोंट, दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स। यू नो, वी आर वेरी वेरी इमोशनल टू अदर रिलेशनशिप। बहुत लिटिगेशन का मैटर भी है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन, लेट्स से कृष्ण चावला जी आके कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है आज की तारीख में, मेरे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, मेरे को कैसे करना है बताओ, क्या करना है, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा 5 मिनट और 5 मिनट्स और। मैं एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई हैव अ वेरी वेरी बिग क्लाइंट ऑफ माइन, मतलब वेरी वेरी वेल्दी लेडी, ठीक है, यूज्ड टू बी वेल्दी 20 years बैक। इतनी लैंड बैंक है उनके पास, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, बट इफ आई से उनके बैंक में ना 10-20 लाख रुपए भी नहीं है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्दी? वेल्दी इन दिल्ली, समटाइम्स आई फील आई it's not right to say wealthy when you are a property of 100 crores but you don't have a bank balance of 10 lakh. That is not wealthy for me, because in chartered accounting terms we feel we are wealthy. पहला पॉइंट। तो क्या होता है, मैंने उनको बोला कि आप ऊपर का फ्लोर भेज दो। बोले माय डॉटर एंड सन डजंट अलाउ, बिकॉज़ एज यू ग्रो ओल्ड significantly your power is less in front of kids and you are in mercy of money all the time. So what I want to tell you is, you know, what is the use of money if you are not able to use it? Why we are creating this wealth, or who we are creating this wealth? So it is very very important for me that I feel that if you have a property, you should liquidate and put in FDs or fixed instruments where you feel secure, or whatever your advisor guides, and create your passive income monthly. You, from interest only, you can earn a lot of money, and that is substantial. So rather than always getting emotional about the time or whom what you're doing, so that is what I think personally, that we should not get attached to assets all the time. For whom we are using if you're not using for our own self? So money is very, very important. It solves 90% of the problem if you have money. I think so. 90% of the problem is around, because you never know recession will, how Corona will last, or something epidemic will next 2-3 years. You need liquidity in life. You don't need properties all the time. So I think निर्मल, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। यू वेरी राइटली सेड। मेरे आई वोंट नेम इट, बट मेरे फैमिली मेंबर में एक होता था कि मेरे पास इतनी जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ पैसा नहीं है। मेरे हाथ में जो आएगा वो मेरा है, तुम्हारे पास जो है वो मेरा नहीं है। मेरे मंथली मेरे अकाउंट में कितना पैसा आता है या मेरे हाथ में कितना पैसा आता है वो मेरे लिए है, वो खर्चा मैं करता हूँ। तो these are the old tradition thought which are there, which are always there for people who are older than 60 years or 65 years. Yes, I agree with you, but what you're talking about, which I wanted to name in terms of it, their asset class, what you're talking about. तो प्रॉपर्टी में सब कुछ नहीं होना चाहिए, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि basically the investments are defined into two categories. One is a fixed assets, जो आप जो कहते हैं इसको immovable assets होते हैं। दूसरा है जो movable assets होते हैं, अच्छा जो liquid assets होते हैं, जो आप 24 hours में या 48 hours में liquidate कर देते हो। So वो पोर्शन सही होना चाहिए, आपका सारा पैसा एक जगह पे नहीं होना चाहिए। That is what I think Nirmal's point was, and it is very important that you have somebody who is advising you in a correct way at whatever age you are. Whatever age you are, अपने किड्स को भी अभी से ही बताना शुरू करो ताकि वो प्रॉब्लम में ना आए। You must create financial discipline. See, Dr. Mona, I have a doubt what you are saying. You are saying long-term planning. Suppose I have a lot of, like Nirmal rightly said, that there is some lady or somebody who has a lot of property but doesn't have money in the bank. In India, having money in the bank is actually the money that belongs to you. Suppose I go to a hospital, I am required cash. I will have no time to sell my property. Even if I have got a fixed deposit, I will have no time to encash my fixed deposit if I am in an emergency. So the problem is that in India, we are dealing everything in cash, and we need cash because health and other sectors everywhere, you buying, selling, a lot of cash is involved. In such cases where I am there, who has spent a lot of money for taking care of the parents, and the rest of the life, whatever I was making, I was spending on my children. So at the end of the day, I'm left with nothing. So in that situation, the cash is most important. And how to generate cash?
If you invest money, then how? Number one, there is no money to invest. चावला जी, ये मैं एग्री नहीं करूंगा कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट है, आप उसको इमरजेंसी के इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस, निकाल सकते डिपॉजिट हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, आपको पेनल्टी लगेगी 1% की। वो अगर अगेन फिक्स डिपॉजिट्स की तरह और भी काफी चीजें हैं जो फिक्स डिपॉजिट के ही मोडियम में होते हैं, विच यू कैन ब्रेक इन। आज आप बोलोगे कल पैसा आपके पास आ जाएगा, आपको रियल कैश रखने की जरूरत नहीं है अकाउंट में। आपको आपके एसेट्स हैं जो, अगेन ये नॉलेज आपको एक फाइनेंशियल गुरु दे सकता है, आपका एडवाइजर दे सकता है, या आपके सीए दे सकते हैं, या जो ऐसे लोग हैं वो दे सकते हैं। और इसमें आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है जहाँ पे आपका इंश्योरेंस ब्रोकर भी होता है, वो भी आपको बता सकता है कि आपकी इंश्योरेंस, आपको अभी इतना कैश चाहिए, आपको थोड़ा सा कैश चाहिए जो आप इसमें कर सकते हो, बाकी आपके पास 24 आवर जो आप लिक्विडेट कर सकते हो कैश को। तो कमिंग बैक, डॉक्टर मोना, आपका कोई सवाल है इस समय? Yes, मेरा एक सवाल है that being into practice, I come across so many families जिसमें females are not breadwinners, they are the house managers, and उनको monthly जो expense मिलता है, say for example 30,000, 40,000, उसमें से वो कुछ 3,000, 4,000 saving के लिए रख देती हैं, and then she runs the house. How effectively this 3,000-4,000 monthly should be invested in some schemes so that over a period of 2 years, 3 years, जब की कोई बड़ा expense आ जाए तो she gets money. 2-3 years, short term investments, not long term. Like a few of ladies I know, they वो रोज के रोज पोस्ट में डाल देती हैं पैसे. I'm talking of low middle class females. वो रोज के रोज 200-300 rupees they put in some postal schemes. तो 3-4 साल के बाद दे हैव सब्सटेंशियल अमाउंट विच इज बिग फॉर देम। तो ऐसे कोई स्कीम्स है जिसमें ये लोअर मिडिल क्लास लेडीज दे कैन यू नो इन्वेस्ट आल्सो एंड दे कैन गेट लंप सम व्हेन नीडेड, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड शेयर, दे डोंट अंडरस्टैंड यू नो प्रॉपर्टीज। तो स्मॉल स्कीम इन्वेस्टमेंट, आई थिंक हर लेडी का सवाल है घर का। मैं इसमें ये भी बोलूंगा, डीमोनेटाइजेशन में काफी चीजें बाहर निकल गई थी, तो ये वही सवाल है वहीं पे जो अपनी गुल्लक में सेव करके रखा हुआ है लेडीज का, वो किस तरीके से उस पैसे को ग्रो कर सकते हैं। देखो भाई, फ्यूचर बिलोंग्स टू व्हाइट मनी, चाहे किसी का भी हो, लेकिन अब तो इतना अच्छा टैक्स स्लैब आ गया है कि 4-5 लाख तक तो इनकम टैक्स है ही नहीं। आप देखो, अगर हाउसवाइफ का टैक्स फाइल प्रॉपर होता है तो मैडम ने जैसे कहा 5,000 अ मंथ, 60,000 रुपीज अ ईयर, तो लिक्विड में आप कहीं भी, जैसे पोस्ट ऑफिस बोला आपने, आई थिंक दैट इज गुड 6-7, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म है पोस्ट ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, बट आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है ना मैम। एफडीज में क्या होता है 5%, इसमें भी आपको 5, ठीक है, अगर वो टैक्स हाई है 1000 में कोई टैक्स नहीं आएगा साल का। सो मेरे ख्याल से या तो वो एसआईपीस करें, उसको दो भाग में डिवाइड कर ले, एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो वो 2,500 रुपए भी करें शॉर्ट टर्म के लिए, जो इमरजेंसी में कभी भी यूज कर सके। बाकी मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स आर वेरी वेरी गुड, एसआईपीस लगाएं, कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। 60,000 साल का भी जमा करेंगे तो 10 साल में 6 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज। तो निर्मल, इसको मैं इस तरीके से आंसर करूंगा। तो मोना जी, आपके पास 5,000 रुपए सेविंग्स आती है हर महीने कैश में, आप अपनी उस सेविंग्स को बैंक में जाइए और उसको डिपॉजिट कर दीजिए। 5,000 रुपए कैश डिपॉजिट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज आपके साल के अमाउंट वहां पे बनेगा। एम आई राइट? यस यस। और इसको आप अपने हस्बैंड से भी छुपा के कर सकते हैं, और अपने मतलब आपने जिस तरीके से करना है वो आप कर सकते हैं, वो आपकी, उसमें मैं नहीं आऊंगा बीच में। और अगर मैंने आपको एक बहुत छोटी सी इलस्ट्रेशन जो मैंने बनाई थी पहले, ये किसी के थ्रू थी, तो इसमें 1,000 रुपए जैसे हर महीने बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, आपके पास 5,000 रुपए हैं, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हर महीने ये कोई फंड नहीं है, कोई ये टेक्निक है इन्वेस्टमेंट की, कोई यहाँ पे फंड का नाम नहीं है, ये एफडी भी हो सकता है, ये नॉन एफडी भी हो सकता है, ये कोई और ऑल्टरनेट फंड्स भी हो सकते हैं। अगर आप देखोगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है, तो 12,000 रुपए साल के इन्वेस्ट कर रहा है बंदा, 1,000 रुपए महीना, एंड उसके जो रिटर्न है, अब 30 इयर्स में आप 70 लाख रुपए कमा सकते हैं इसके अंदर। द मैच्योरिटी वैल्यू इज 70 lakhs rupees over here, and this is on the return of 15%। अगर आप इसका रिटर्न आधा कर देंगे तो आपकी बेसिकली तब भी the 70 lakhs की जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी और कम रह जाएगी। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा था आपको ये स्क्रीन,
क्योंकि आपको 5,000 रुपए लग रहे हैं, बहुत छोटा अमाउंट है, आपको लगता है 5,000 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन 5,000 रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एक रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, अगर आप तब से शुरू करें जब से आपकी शादी हो गई हो। मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, I'll share for Dr. Mona and for your information that there are some of the banks वो डेली कलेक्शन करते हैं, जैसे रेडी वाले, छाबड़ी वाले, दुकानदार, उनके पास उनका एजेंट डेली जाता है, वो उसको 20 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम। और कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो कहते हैं कि हमारे से वीकली लो, तो उनका एजेंट जाता है पेटी बैंक अकाउंट, समथिंग दे कॉल इट, they collect that money and next day they deposit in their account, so like that you can build an account जिसमें डेली के डेली या वीकली के वीकली पैसे। चावला जी वहां पे तो हम इसको सजेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे तो क्या है ना, अगर बैंक आपका अवेलेबल नहीं है, अगर ये तो बैंक के जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वो एजेंट आपके पास आके ले जाता है और डिपॉजिट करता है, एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, दैट इज द एम्प्लॉई ऑफ द बैंक। Yeah, but we are not talking about कि किस तरीके से करें, we are talking about 5,000 का करें क्या। साधन आपने जमा कराना है वो आपकी हेडेक है, वो आपने कैसे कराना है वो आप देख लीजिए, उसकी कोई नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो किस तरीके से बैंक में जमा कराएं, उनका कंसर्न है कि 5,000 रुपए का करें क्या। तो दिस इज व्हाट आई थिंक फाइनल कमेंट्स में निर्मल से पूछूंगा बिफोर आई कैन इनवाइट अदर पीपल। निर्मल, हाँ सौरभ, कैन यू हियर मी? Okay. There was some, yeah, please ask me because there was some gap in between, so इनका सवाल जो मैंने बताया है कि 5,000 रुपए इनको मिलते हैं हर महीने का, तो इसका वो क्या कर सकते हैं जिससे कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। इनका 5,000 3,000 जो अपना छुपा के वो करते हैं, तो एक सीक्रेट अकाउंट बना लो और वहाँ पे घर पे रखने की जगह पे वही है, क्योंकि पता चले दोबारा डिमोनेटाइजेशन आ जाए, फिर वो दोबारा पैसा बाहर निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि व्हाइट मनी में कन्वर्ट करो, व्हाइट मनी में आपको टैक्स ही लगेगा। तभी मैंने बोला कि गोल्ड बॉन्ड कैसा रहेगा? देखिए गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा स्कीम है, बिकॉज 2.5% आपको टैक्स फ्री तो गवर्नमेंट दे रही है इंटरेस्ट, और गोल्ड का अप्रिसिएशन अलग दे रही है। तो मैंने आपको यही बोला कि वो आप डिवाइड कर दीजिए, गोल्ड बॉन्ड भी एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे म्यूचुअल फंड में आता है, तो आप डिवाइड कर दीजिए, आप अपने फाइनेंशियल कोच एक किसी को हायर करिए, एक साथ ग्रुप में सबको आप एडवाइस करवाइए, और यू कैन डिवाइड इट। आप पोस्ट ऑफिस रिकरिंग कर लीजिए, जो आपको हाफ लिक्विड पैसा चाहिए, बाकी को आप लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए, बिकॉज गोल्ड भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ही परफॉर्म करता है। आप देखिए गोल्ड हैज रिसेंटली परफॉर्म बिटवीन 2012 to 19, गोल्ड डिडंट परफॉर्म डॉलर टर्म्स में, मैं और डिटेल में समझाऊंगा, बिकॉज गोल्ड की रियल अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बट ये गवर्नमेंट स्कीम बहुत अच्छी है। जो फिजिकल गोल्ड रखने की आदत है, इससे बेटर है आप ये वाला गोल्ड रखें, बिकॉज एक तो सारा पैसा टैक्स फ्री, दूसरा 2.5% अबव द गोल्ड अप्रिसिएशन मिल रहा है, कंपाउंडिंग एवरी ईयर, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, और कोई चार्जेस भी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई लॉकर चार्जेस नहीं है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। मेक सेंस कि बहुत ज्यादा जो गोल्ड रखने की आदत है, सेफ्टी सिक्योरिटी, वो सिर्फ एक नोशनल कस्टोडियन बन के रह जाते हैं हम। आई थिंक वी शुड कीप गोल्ड बॉन्ड्स, विच इज वेरी राइट। थैंक यू सो मच निर्मल, आई होप उसका आंसर है। मोना जी का आपका कोई और सवाल है इसके अंदर? नहीं तो फिर हम आगे लेते हैं सवाल। गोल्ड बॉन्ड अच्छी चीज है, वहां पे आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है बेसिकली। हाँ जी। LIC is also coming with many new schemes wherein you have to invest monthly. तो मोना जी, हम इन्वेस्टमेंट्स के हम डिटेल्स में अगले सैटरडे जाएंगे। आज की तारीख में हम ऑप्शंस डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले बेसिक टॉपिक समझाना चाहते हैं लोगों को। ये तो समझ में आए कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अगर लोग इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं करेंगे या लोग अपनी प्लानिंग ही नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं बोलूंगा मैं, अगर इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे लोग सोचते हैं कि कुछ मतलब कहीं पे ऐसा शेयर में पैसा डालेंगे वहां पे डूब जाएगा पैसा, तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं है, एफडी भी एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, रिकरिंग डिपॉजिट भी एक चीज होती है जहाँ पे आप 6% पे रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जा रहा है, वो भी एक ऑप्शन है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल व्हिच पीपल कैन प्लान। तो हमारे साथ शानू जी हैं। शानू जी, आपको कोई सवाल? So for any economy, investment is more important than the savings. Is it, Nirmal ji? Yes, absolutely, you're right, sir. See, there are in saving-led economy, there is an investment-led economy, definitely. Right. Sir, consumption drives the economy. Consumption drives the economy. So consumption, that is the government's role to invest
in country and economy, whatever they earn through taxes directly and indirectly. But for investors, protection for their personal savings, end of the day, money helps you a lot, sir. You can't See, be in debt. I will share with you that during the recession, when there was a lot of recession in America, why they failed and could not come up was because they've been using plastic money. And in India, even a rickshaw wala saves 10 to 20% of his daily earnings. And we don't depend on plastic money. We don't spend unless we have money with us. They used to spend in advance, so they had problem. Whereas the impact of recession was not that much seen in India because we were only spending if we have the money, if we have the cash. And every small guy in India saves around, this is the habit, 10 to 20% of his saving he wants to earning he wants to save. So that made us safe. That saved us from recession. Yes. ठीक है. और क्या क्वेश्चन और निर्मल, थोड़ा सा मेडिक्लेम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आज की तारीख में आई थिंक मेडिक्लेम इज द नीड ऑफ आवर. तो थोड़ा सा विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड, हम किस तरीके, मतलब व्हाट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिक्लेम. निर्मल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा सवाल. द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिक्लेम और मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है, इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस नीड. अगर आपका मेडिक्लेम, अगर देखो क्या होता है, आपकी इनकम है, आज की तारीख में सबसे प्रॉब्लम है कि लोगों की ईएमआई चल रही है. लोगों की जो इनकम है, लेट्स से वो कहीं पर जॉब एम्प्लॉयड थे या फिर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट थी, उसमें या तो उनकी सैलरी आधी कर दी गई है या फिर उनको बोल दिया गया है कि आप घर चले जाओ, अभी हमारे पास जॉब नहीं है, बिकॉज कंपनीज आर आल्सो सफरिंग. तो आज की तारीख में अगर उनको कुछ होता है तो दैट इज अनदर बर्डन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव एन ईएमआई बर्डन, फिर उनकी जो इनकम है वो खत्म हो गई है, एंड नाउ इफ दे गेट सिक तो इनका एक मेडिकल बर्डन है. अगर आपने शुरू में मेडिकल इंश्योरेंस कराई होती, जिसका आप एक बहुत छोटा प्रीमियम पे करते हैं, निर्मल कैन करेक्ट मी लेटर ऑन दिस थिंग, बट मैं जो मेरा मानना है, लेट्स से आज की तारीख में मेरी एज, मैं एज नहीं बताऊंगा, चलो मैं लेट्स से मेरी एक हाइपोथेटिकल एज है, मेरी 30 इयर्स की एज है. 30 इयर्स में अगर मैं 10 लाख की इंश्योरेंस कराता हूँ या 15 लाख की इंश्योरेंस कराता हूँ, तो मेरा प्रीमियम लगभग मेरे ख्याल से 8-9 हजार रुपए या 10,000 रुपए पड़ेगा, अगर आप एक प्योर मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं. अगर आप इस प्रीमियम को अगले 20 साल तक पे करें, तो निर्मल मैं आपकी मैथ्स देखूंगा कि 20 साल इंटू 10,000 रुपए कितने हुए. या लेकिन प्रीमियम चेंजेस विद एज, सौरभ जी. 35 मैं नहीं बोल रहा कि 6,000 रुपए प्रीमियम, लेटेस्ट टेक 15,000 रुपए प्रीमियम. एवरेज 15,000 साल का आपने 3 लाख रुपए 20 साल में देंगे टोटल. आप 15,000 रुपए, आपने 30,000 ले लिया प्रीमियम, लेट्स से 3 लाख के हिसाब से आपने, तो 15,000 रुपए अगर मैं बोलता हूँ महीने का प्रीमियम है, और लेट्स से अगर मतलब एज वाइज बढ़ता रहेगा, एवरी ईयर का 15,000 प्रीमियम है, लेट्स से आप एवरेज लेके बढ़ा भी लो तो आपका 16,000 हो जाएगा. 15,000 इंटू 12 इंटू 2 इंटू सॉरी 15,000 रुपए साल का प्रीमियम. हाँ, तो 3 लाख रुपए 10 साल का 15,000 का 1.5 लाख रुपए हुआ. 3 लाख टोटल हुए 20 ईयर्स में. हाँ, 20 साल में 3 लाख रुपए हुआ. अगर आप आज की तारीख में एक दिन हॉस्पिटल चले जाओगे तो कितना का बिल आएगा? मैं यही कह रहा था, अगर प्रीमियम 4-5 लाख भी लग जाए टोटल में, तो इट मेक्स सेंस फॉर द फैमिली टू हैव पीस ऑफ माइंड देन लुकिंग एट मनी ऑल द टाइम. सो पीस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेडिक्लेम जैसे एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे मेडिकल भी फ्री होती है, हमारे कंट्री में वो भी अभी तक नहीं है, एक्सेप्ट टू सर्टेन, जो मिस्टर मोदी हैज डन इट इन द लास्ट 2 years. Mediclaim we must take, all of us, and even group insurance can be done. So I think it makes lot of sense. Compulsory, हम लोग क्या बहुत casual हैं, जब होगा तब करते हैं, तो वो casual attitude के कारण we forget it. Our intention is to buy it, but we always need excuses, या पैसा नहीं रहता, या tightness है, या हम casual रहते हैं. I think head of the family should be responsible in the family that Mediclaim सबकी बनी हुई है, will सबका बना हुआ है. एक will भी बहुत important topic है, लोग will नहीं बनाते. अब बाद में सारी लिटिगेशंस होती है रिलेटेड टू फाइनेंस ही है. ये विल भी, हमें विल कंपलसरी नहीं है बनाना, विल शुड बी देयर, मेडिक्लेम शुड बी देयर, एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग मस्ट बी देयर. अगर ये तीनों चीजें रहेंगी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर ऑफ, आई थिंक. सो मेडिक्लेम इज नॉट एन ऑप्शन. मैं ये नहीं बोल रहा प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, मैं ये नहीं बोल रहा नेशनल मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स आ रही है. एज अ कॉन्सेप्ट मेडिकल इंश्योरेंस इज अ नीड ऑफ आवर. You should not, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, आपको रात को खाना नहीं खाना पड़ेगा, खाना नहीं खाना चाहिए.
आपको स्ट्रेस होगा कि आप अगर कल को कुछ हो जाए तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा। तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड डू समथिंग अबाउट इट, प्लान इट, गो टू एंड टॉक टू योर कंसल्टेंट, बट डू नॉट डू ओनली बाय मेडिकल इंश्योरेंस व्हिच आर राइट फॉर यू, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम हो चाहे नहीं हो। क्योंकि अगले जैसे मेरे अगर लेट्स से कृष्ण चावला जी, आप मेडिकल इंश्योरेंस है आपके पास? नहीं, मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है। अच्छा, मोना जी आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है? जी मेरे पास। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो है आज की तारीख में हॉस्पिटलाइजेशन इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस कैन कवर अप। और मेडिकल इंश्योरेंस जो वर्कआउट करता है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो आपसे पैसा ले रहे हैं। 50 लोग पैसा दे रहे हैं, उसमें से 2 लोग बीमार होते हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रॉफिटेबल होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कोई फेवर कर रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस इज अ गुड बिजनेस फॉर देम, दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। बट आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है क्योंकि पूल है, वो भी एक म्यूचुअल फंड है एक तरीके से। 50 लोग या 100 लोग एक इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो पैसा एक पूल में जाता है, वो पैसा कुछ लोगों के पास जाता है जो बीमार होते हैं। हाँ बोलिए, आप क्या सवाल है आपका? मेरा एक स्टेटमेंट है, लेट अस सी हाउ यू रिएक्ट टू दैट, कि आज की डेट में कोरोना टाइम में द रिचेस्ट मैन इज रिटायर्ड एम्प्लॉय, बिकॉज कम सैलरी कम हो नहीं रही, काम पे जाना नहीं है, खर्चे कम हो गए हैं, खर्चे ज्यादा है नहीं, घर में बैठना है, इनकम पूरी आ रही है। तो मेरे ख्याल से द रिटायर्ड पर्सन इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द डे टुडे। इज इट करेक्ट? सर देखो, ये बड़ा पर्सनल एट्रीब्यूट है, बिकॉज हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, सबके साथ ऐसा ना हो। जिस पे बीतती है उसी को पता है कि घर में क्या चल रहा है। बहुत पर्सन पे इतने डिपेंडेंट्स हैं, कई जॉब और निर्मल आपकी आवाज ब्रेक कर रही है फिर से। आपके आधे वर्ड्स खा गए हो आप बीच में। तो अब मैं इसका आंसर देखो, ये अगेन पर्सनल क्वेश्चन है बहुत बड़ा। ये आई एग्री विद निर्मल, बहुत पर्सनल है। सही बात। किसी की कुछ आर्थिक वो है, किसी के कुछ है, किसी के यहाँ पे कोई रिटायर कर गया लेकिन उसके बाद इनकम नहीं है, तो खर्चे कम हो गए या नहीं हुए वो सवाल अलग है। आई थिंक ये उनके लिए अच्छी चीज है जिन्होंने सेकंड इनकम बना रखी है अपनी, जिन्होंने प्लानिंग करके अपनी सेकंड इनकम बना रखी है, वो आज रिटायर स्टेज में, उनके लिए मैं बोलूंगा इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम, क्योंकि उनके खर्चे कम हो गए हैं, उनके बाहर जाने के डिनर बिल्स कम हो गए हैं, कपड़े लेने के बिल कम हो गए हैं, लेकिन उनकी इनकम जो सेकंड इनकम से आ रही है वो सेम है। लेकिन किसी ने सेकंड इनकम नहीं बना रखी तो उसके लिए तो पेन है ना। So it is a very personal question. It is a very generalized. It is not a generalized question. Yeah, it's a very personal. See, it's okay, personal. But see, if you have planned a bit in advance, so this is the right. See, everybody plans for his son's marriage. Everybody plans for their daughter's marriage, for their education, and for his retired age also. Everybody wants to make a retire होगा तो मैं क्या करूँगा? So if you plan things properly, I think he is the best person today. He is the happiest person today. But if you are not planned, or if there are unnatural problems, unnatural calamities, there are stresses, there are failures, there are successes, anything could happen. You spend money in one of some adventure for some money or some shares, and tomorrow uske shares डूब गए, तो is a different thing. But normal course में जो plan करके एक reasonably plan करके आदमी चलता है, उसके लिए is the happiest time. This time is the happiest time. I don't think this is the happiest time for anyone. I take it that way. I take it positively. Honestly, I don't have any income. I even don't get pension. I'm dependent on my wife. Still. So Nirmal, we will take this question. आप screen पे आप पढ़ोगे या मैं पढ़? चलो मोना जी आप पढ़िए क्वेश्चन। अच्छा, where you have one income, you can just do investment for child education, their marriage, and for future planning. 2, should we do investment in mutual funds, as general people is not aware about stocks? So Nirmal, आप आंसर करोगे, मैं करूं, आप करो? Yes, it makes absolute sense. If you can do your surplus, mutual fund is a great option because the cost of managing investment, peace of mind, very transparent, very liquid, and a professional fund manager is managing your money.
So it makes a lot of sense to invest in mutual funds. There's no second thought. So to elaborate this question, इनका पहला question ये है कि where you have only one income, you can only invest for either child education, for marriage or future planning. Goals बहुत हैं, कहाँ पे पैसा इस्तेमाल होना है, मेरा सिर्फ ये है, आपकी एक इनकम है, सेकंड इनकम बनाइए. इसका सिर्फ सवाल ये है, जवाब ये है, उस सेकंड इनकम को आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो आप बाद में सोचिए. आप पहले सेकंड इनकम तो बनाइए ना. तो आपकी एक इनकम है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए और या फिर सेव करिए कहीं पर, उसको ग्रो करवाइए, चाहे वो छोटा सा अमाउंट हो. इन्वेस्टमेंट कैन स्टार्ट अप टू ओनली 500 रुपीज अ मंथ. 500 रुपए चाहिए सिर्फ आपको इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने, और कुछ नहीं चाहिए. 500 रुपए आप बाहर जाओगे तो आपकी जेब से अगर आप जाके सिर्फ एक आइसक्रीम या कुछ खाते हैं तो वो भी आपका 500 रुपए खर्च जाते हैं. तो 500 रुपए इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सेकंड, शुड यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड? यस, जनरल पब्लिक जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास स्टॉक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, जिसको रिस्क लेना तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड वी विल एंड दिस शो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड कमिंग फ्रॉम निर्मल बंसल. And then I will request 1 minute. There are a lot of questions about sir's health. If you want to add one line, we will take it. Go ahead. My last answer: just mutual fund is just a pool of investment for a common objective. So fund manager decides कि पैसा कहाँ लगाना है. जैसे गोल्ड ETF मैडम ने बोला, तो गोल्ड में लगाना, तो म्यूचुअल फंड का सिर्फ गोल्ड से रिलेटेड फंड भी हो सकता है, या सिर्फ बॉन्ड्स में सेफ इन्वेस्टमेंट लगाना है तो डाइवर्सिफाइड बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट लग सकता है, रेटिंग्स होती है उसमें. तो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को म्यूचुअल फंड कहते हैं, जहां पे कंबाइंड लॉट ऑफ पब्लिक इन्वेस्ट फॉर अ कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव. इट कैन बी इक्विटी फंड्स, इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी गोल्ड फंड. सो म्यूचुअल फंड इज जस्ट अ नेम. म्यूचुअल मिलके क्रिएट अ फंड इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड. मैंने इसकी डेफिनेशन पता है निर्मल कैसे सिखाई थी किसी को? बताओ. जहाँ पे झुंड जा रहा है वहां पे चले जाओ, आप कभी गलत नहीं होगे. तो जनरली क्या होता है, आपने कभी इंडिपेंडेंस डे पे जाते हो, आपका रास्ता बंद होता है, एक गाड़ी जा रही होती है, वो कहीं और घुमा लेते गली में, तो आप बाकी सारी गाड़ियां उसके पीछे चली जाती है, उसको ऐसा लगता है कि उसको पता है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो जहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं वहां पे इन्वेस्ट कर दो पैसा. उसका मतलब होता है म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पे सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस फंड में इन्वेस्ट कर दो. अब उस फंड के बारे में बहुत चीजें हैं, जैसे आप जो आप निर्मल कह रहे थे कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बहुत सारी ऑप्शंस है. कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा सेफ है. अगर आज की तारीख में आप जाके बोलते हो कि मैं एक पर्टिकुलर बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, लेकिन वहां पे जाके वो बैंक, हो सकता है कि वो बैंक में कल को प्रॉब्लम आ जाए. कितने कोऑपरेटिव बैंक है जो आज की तारीख में प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिसके पैसे फंड हो रहे हैं. तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालो जो सिर्फ एफडीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो पांच बैंकों की एफडी में इन्वेस्ट करेगा पैसा, तो आपका पैसा और सेफ हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया. तो मेरा म्यूचुअल फंड जो मैं लोगों को समझाता हूँ, भैया जहां झुंड जा रहा है वहां इन्वेस्ट करो, आप सेफ रहोगे, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट मत करना. जहां झुंड जा रहा है ये नहीं कि आप फ्रॉड वाली इन्वेस्टमेंट में चले जाओ. हर एक फंड की रेटिंग होती है, हर एक फंड का नॉलेज होती है, आप पढ़ो समझो और फिर इन्वेस्ट करो. लेकिन म्यूचुअल फंड वहां होता है जहाँ पे अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदते हो, वो शेयर का आप अगर कल को वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा. म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आपकी वो कंपनी डूब जाए तो आपका सिर्फ 2-3% का फर्क आएगा, बाकी को फर्क नहीं आएगा. फाइनल कमेंट्स. नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो एक सीनियर सिटीजन की स्कीम बताओ कि दे व्हाटएवर मनी दे हैव गॉट, वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट सो दैट देयर मनी ग्रोज फास्टर. We want a scheme because there is very less information on senior citizens. There is a lot of information about youngsters. So I would like you to come in the next show with a proposal that how they can spend money and where they can spend. And they might not spend money in the installments. They may have lump sum amount to spend. So where should they spend? Most of the old age investors has lump sum money or a pension money or a VRS का पैसा होता है. So they park in certain funds where they can tax free money. So it's like a customized portfolio one can create with their financial advisor. So we can help you a lot in managing and dividing it so that you can create your monthly income from that. Because fixed deposit is going down, so we can work on it. I'll explain also. So I think we are out of time now. Thank you so much, Nirmal, for joining. Thank you so much for Krishna Chawla ji for joining. And thank you so much, Mona ji, for joining us. Thank you all the viewers. Dr. K.K. Agarwal is
is still under the observation of the best medical facility in India, I would say, or probably in the world. He has a team of doctors who is taking care of him every hour. There are updates which are coming in, and he's doing okay right now. We have given an update in the morning, and there is no major change in the update. We are waiting for his speedy recovery. We are hoping. This platform, we have about 400 people who are viewing this directly, and there are more than 5,000 people which will see this show by the end of the day. My only request is pray, 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 not only for Dr. KK, for everyone who is sick right now, who is in a pain. And I request everyone to go out, help everyone, whoever can do whatever capacity. कृष्ण चावला जी ने आज बोला था कि अगर आप रिटायर्ड हो, आपके पास पैसा काफी है, तो क्या कर सकते हो? Go help people, see what you can do, find out your neighbors, किसको क्या चाहिए. जरूरी नहीं है आपको फाइनेंशियल हेल्प देनी है, आप जाके उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं. किसी के लिए कोई ऑक्सीजन कर सकते हैं. हमारे पास एक टीम है जो आज की तारीख में सिर्फ एक लीड वेरिफिकेशन कर रही है. उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ लीड वेरिफिकेशन कर रही है. कोई भी व्हाट्सएप पे फेक न्यूज आती है, अच्छी न्यूज आती है, उनको वेरीफाई करती है और आगे फ्लोट कर देती है. एंड दैट इज रियली हेल्पिंग अस आउट. So with this note, I thank you everyone for joining this session. See you again tomorrow for a 2 p.m. show and a financial session on every Saturday. Thank you so much for joining us. Thank you.